आपको तो पता ही है कि आज हम बात कर रहे हैं 2047 योर आइडिया एंड विजन फॉर इंडिया. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, ये मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है. मुझे ऐसा लगता है कि जितना यूथ पार्टिसिपेशन और रादर अवेयरनेस अभी के समय में है वो पहले नहीं हुआ करता था. बट आई एम विलिंग टू सी मोर पार्टिसिपेशन, मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ इन द फ्यूचर. चाहे वो सोशल मीडिया हो या अदर सोर्सेज से लोगों को पता चल रहा है कि दुनिया में, देश में, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है. सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, उसका इम्पैक्ट इन यंग माइंड्स पे बहुत गहरा आ सकता है. तो हम ये कोशिश करने वाले हैं आज के डिबेट में, अनलाइक अ टेलीविजन डिबेट, वेयर वी डोंट फाइट, we talk to the youth especially, and we talk about actual issues जिससे हम लोगों को एक रोड मैप मिल सके आने वाले समय के लिए. So let's begin with the first topic, and we can talk one after the other. One nation, one election. What is the idea of this simultaneous election in India's democracy? How can it be helpful, or are there any drawbacks? Both of you can talk one after the other. It's okay. I mean, ladies first, हर जगह पे बोल दीजिएगा. मिनिस्ट्री देते समय भी ऐसे ही बोलेंगे तो it will be a great honor for all of us. One nation, one election is not a new to this country. When we had our constitution, when we got our freedom, it was always one nation, one election. Till 1967, when one of the governments was dismissed in the midterm by the center. And this consecutively kept on happening until now. For the last 10 years, it's not happening unless 104 times the governments have been dismissed on various grounds or the other. So the need come that now we should have one nation, one election, enough of this dismissal business. I elected government because, see, you as a student, now I'm asking you, for the last March 2024, what are we doing? From March, we started preparing for the Lok Sabha. We need to change this. Ended up June 4th. Then again came election of Haryana. Jammu Kashmir, all the political parties got engaged there. When we finished up Jammu Kashmir, Haryana, then came the election of Maharashtra, Jharkhand. We all got there. It got finished yesterday. Now comes the election of Delhi in January. Then comes the election of Bihar in October. If we all the time, the political parties and the parties in the power keep on going after election, when we are going to work for the people? This is the need of the hour. This saves a lot of money, time, energy, your commitment to the society, your commitment to your own words on what you have fought the election. How you are going to deliver if you are not going to have time? If you are always going on states, asking for votes, we will do this, we will do that, we will do this, ये योजना लाएंगे, वो योजना लाएंगे, अरे कहाँ से लाओगे जब काम ही नहीं कर पाओगे? This is the basic problem. So one nation, one election not only saves your money, your energy, the exchequer's money, your taxpayers' money, lot of things put together. The people of India are not so fool that they can be taken over. They can select the central government and a state government of their choice at the same time, and multiple states have shown, like Telangana, Andhra, Odisha, we have seen in the past. So there is no question of challenging the diversity or opinion of the people also. If they want a certain government in the state, they can get it. And what they want the government in the center, they can get it. So I guess one nation, one election is the need of the hour for this country to be prosperous in 2047. I mean, one nation, one election, at present scenario, I mean, sir said it's been, Alok ji said that it's been going on since ages about discussion on that. In present scenario, till today, I don't think one nation, one election is a good idea for a country like India. Because we have various states, various regions, which need their own representation. आज मैं गुजरात में हूँ. If you keep लोकसभा and your गुजरात इलेक्शन साथ में, मुझे बताइए आप जब वोट करने जाएंगे,
आपको मिलता है 5 सेकेंड 10 सेकेंड मैक्सिमम अ मिनट्स टाइम, उसमें आप सोचेंगे क्या पहले कि यार मेरे गुजरात में पानी कौन देगा, लाइट कौन देगा, उसको चुना के लेके आऊं कि किसी एक के चेहरे पे लेके चुनाव लेके मैं करूं? क्योंकि उनको ही प्रॉब्लम हो सकता है जो एक आदमी के फेस पे सारे इलेक्शंस करना चाहते हैं, उनको ऑब्वियसली वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए ही होगा, क्योंकि रीजनल डाइवर्सिटी में अगर उस रीजन के इंसान की कैपेबिलिटी है तो मुझे सेंटर से आने की उसको ज़रूरत ही नहीं है कि मेरे प्रचार के लिए कोई आए और मेरे लिए वोट मांगे। भैया मैंने 5 साल जो काम किया है उसके बदौलत मुझे आप वोट दो ना, उसके बदौलत आप मुझे चुन के दो। So where does the regional diversity of a particular state stands? This is my first argument. Second is, अभी ये बोले जा रहे कब से कि one nation one election. Why didn't they do in 2024? Why didn't they do it in past years, past 10 years? Now if we are planning to do in 29 also, I totally agree. अगर एक टका मान भी जाओ कि 29 में कर लेते हैं भैया, चलो जी। अगर इनको लगता है तो कर लेते हैं। व्हाट अबाउट स्टेट लाइक कर्नाटका जिनका 28 में इलेक्शन हो रहा है, 1 साल हो रहा है, वो गवर्नमेंट पीपल्स मैंडेट आप डिसॉल्व करके डायरेक्टली इलेक्शन जाओगे, तब खर्चा नहीं होगा आपका कि उसको 1 साल और बढ़ा के 6 साल दोगे, तो यार 6 साल चलाने के लिए तुम्हें राज्य किसने दिया? So there are many such issues where around 70 to 20 states, even if we do it in 2029, are going to face this problem of 1 year, 2 year या 3 year. और ये मैं सिर्फ लोकसभा और राज्य असेंबली की बात नहीं कर रही. What about the another 5 to 6 elections, local bodies elections, जहाँ पे म्युनिसिपैलिटी होती है, ग्राम पंचायत होती है, ZP होता है, TP होता है? यार ये प्रॉब्लम्स, देश की प्रॉब्लम्स पे ये लोग सॉल्व करेंगे. आज हम ऐसी इंडिया में रह रहे हैं जहाँ पे एक MLA या MP डिसाइड करेगा क्या कि मेरे रास्ते का गटर कब बनेगा, मेरे गली का रास्ता कब बनेगा, मेरे घर पे पानी कब आएगा? Aren't we supposed to move forward and each person who is getting elected from the grassroots level to the prime ministerial MP level should be responsible for his or own share and to be answerable to each and every person of that village. So according to, if we see overall scenario, one nation, one election will be a total attack on the various regional issues of the state. और मैं तो अगर वोट डालने जा रही हूँ, मैं श्योर चाहूंगी कि एक किसी आदमी का फेस देख के मैं ना वोटिंग करूं. मेरा जिसके लिए वोट जा रहा है उसका काम कितना है, वो पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, और वो किस एंगल में, किस तरीके से देश को या मेरे जगह को या मेरे गांव को चलाना चाहते. सो आई एम नॉट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन इन प्रेजेंट सिनारियो. Okay. Sir, you wanted to say something? Well, I would like to just remind you all guys कि कहने को हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, कहने को, लेकिन अगर इंडियन इलेक्शंस को आप ट्रेस करें, आज तो गूगल पे सब कुछ आता है, एवरीथिंग इज देयर ऑन द गूगल, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट. This country has always been voting in trends in Lok Sabha on the form of presidential form of democracy. जब नेहरू थे, it was all नेहरू नेहरू नेहरू. नेहरू के बाद शास्त्री आए, शास्त्री के बाद गांधी आए, गांधी के बाद राजीव गांधी आए, राजीव गांधी के बाद एक मिनट, आई एम जस्ट कंप्लीट. राजीव गांधी, Let him finish. Let him. राजीव गांधी आए, राजीव गांधी के बाद अगेन सोनिया गांधी चलती गई, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आए, अगेन सोनिया गांधी कंटिन्यूड, देन नरेंद्र मोदी कम्स, एंड टुडे आई एम हियरिंग फ्रॉम माय कांग्रेस फ्रेंड, एक चेहरे पे कैसे वोट दे देंगे? अरे इट्स अ फेयर ऑफ नरेंद्र मोदी, नथिंग एल्स. सेकेंड थिंग, डाइवर्सिटी कैन ऑलवेज बी देयर इन इंडियन पॉपुलेशन. डाइवर्सिटी कैसे नहीं होगी? सबसे पहली बात आई वुड लाइक टू से, यहाँ पे हम लोग टॉपिक ऑफ डिबेट था हमारा, व्हाट यू वांट टू सी एज इंडिया ऑफ 2047. 47. आई विल टुडे से, हम 2047 का भारत कैसा देखना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू सी एज भारत एट 2047? व्हाई भारत? Recently, the president in G20 invited everyone. I, the president of Bharat. Lot of controversies were raised. Why not India? Why Bharat? Why? Simple. India was a colonial name given to us. It was not our name.
It was name given in disgust by the Britishers to us, which we made proud today all in the world. But our original name is Bharat. And what does Bharat means? Bharat का मतलब क्या है? Bharat. Bha is the enlightenment of knowledge. ज्ञान की खोज में. And Rat is लगा हुआ. I am with it. So we have come from the country where we are in search of knowledge. हम उस देश से आते हैं जो हमेशा ज्ञान की खोज में रहते हैं. So today we are Bharat. And if we people say we cannot do this, तो हमसे बड़ा coward कौन है? Until unless we try it, how we are going to not to do it? आप 28 की बात करो, 29 की बात करो, 5 years election, 6 years election. जम्मू कश्मीर में इतने साल से 6 साल की असेंबली थी, क्यों नहीं बदला आपने? धारा 370 इतने साल से लगी हुई थी, 2 विधान 2 संविधान, क्यों नहीं बदला आपने? किसने मना किया? लोग कहते नहीं, ये नहीं हो सकता है भाई, छोड़ो दो. नहीं पॉसिबल नहीं. If you don't have the will, you don't do it. Let me bring this back to the main question that we were talking about. My vision also of 47 will be a vision. इन्होंने भारत के बारे में बोला. जी. So भारत ये नाम इन्होंने अभी इनको क्यों दिखाई दिया? Because we started India Alliance. उनको पता नहीं है भारत नाम के कितने सारे कंपनीज नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के टाइम से चलते आ रहे हैं. जी. And elections are fought on party basis, party ideology, not on faces. Okay. And unfortunately, if you see the parliament this time or past 10 years, एक फेस के नाम पे क्या क्या चुन के जा रहे हैं, क्या प्रोडक्टिविटी है उनकी पार्लियामेंट में, यू ऑल ऑल्सो आर विटनेसिंग इट. और वो कितने क्वेश्चंस अपने क्षेत्र के बारे में पूछते हैं और क्या करते हैं सिवाय बेंच बजाने की कोशिश करके और अपलोड करने के बावजूद. दूसरा मेरा विजन 2047 के लिए, आज अंबेडकर जी का डेथ एनिवर्सरी है, उनको वंदन करते हुए आई वांट अ इंडिया विच रन्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. मुझे कोई बता नहीं सकता मैं क्या पहन सकती हूँ, क्या खा सकती हूँ, क्या पी सकती हूँ सिवाय मेरे माँ बाप के. नो वन कैन डू द डिक्टेटरशिप. कल आसाम में बीफ बंद कर दिया. Who are they to dictate? Just because you are elected doesn't mean you have the right to rule on one's life. And आज गुजरात से जी. गांधी जी के अपने प्रदेश से मैं वो सत्य और अहिंसा का भी मार्ग चुन के सर्वोदया के मार्ग पे अपने इंडिया को लेके जाना चाहती हूँ. एंड इंडिया कम्स फ्रॉम द रिवर इंडस, विच इज द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर इन आवर कंट्री. हिंदुस्तान क्यों नहीं बोलते फिर आप? इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, इट कैन बी एनीथिंग. I'm not objecting to whatever you want to say Right. or wish to say about your own country. Right. लेकिन उसके नाम पे जुमले छोड़ के please don't take it to stone age is my thing. आगे जा रहा है. Because we are in Gujarat, I would certainly like to remind one small thing. विकास मतलब क्या, वो कि हमें आगे देखते हुए जाना है. यहाँ पे जो सरदार सरोवर डैम है जी, उसकी स्थापना नेहरू जी ने की थी और उसकी वजह से आई एम टॉकिंग अबाउट 1961 गाइस, वो विकास नहीं था उस टाइम का. आज गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, सब जगह पे बीजेपी की सरकार है. गुजरात में इतने साल से बीजेपी की सरकार है. गुजरात को पानी वो नेहरू जी का संस्थापना किया हुआ डैम देता, ये आप लोगों ने भूलना नहीं चाहिए. तो विकास कहाँ जाता है और विकास किस मायने में चला जाता है, वो भी आपने थोड़ा सा हिस्ट्री में झांक के देखेंगे. पन्ने अगर पलटेंगे तो अपने आप व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी दुनिया से बाहर निकल के जी, इफ यू रीड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट प्रोग्रेसिव इंडिया दैट टाइम. और कॉलोनियल टाइम की बात की, जब हमारे पास देश आया था, famines were there. Since my dear friend is a doctor, famines were there, money was not there. Thinking of science and technology and all these things in that era also, it is a big vision for the country which I am living today, I feel. So पहले तो एक बात मैं Just 10 seconds. जी जी जी. इंडस रिवर कोई अपने आप में रिवर नहीं है. इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रिवर, रावी, झेलम, चेनाब,
दास एंड झेलम, इन पांचों को मिला के हम लोग इंडस स्ट्रीम कहते हैं. So again There is comes no unity individual, with- there is no individual river Again called comes Indus. unity with एक मिनट, diversity, एक my मिनट, friend. एक मिनट. 5 into I 1. never- so again, I- that is what my India is. Let's not make it like TV. I'm just telling you. आज अंबेडकर दिवस है. बाबा साहब को हम लोग सबको ही नमन करते हैं. उन्होंने हमें संविधान दिया. बाबा साहब के संविधान का ओरिजिनल प्रियम्बल पे, उस ओरिजिनल प्रियम्बल को चेंज किया गया इमरजेंसी में. ये बाबा साहब के संविधान की बहुत बड़ी इज्जत थी. वी द पीपल ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल था, उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर घुसाया गया 42nd अमेंडमेंट करके. ये बाबा साहब को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि थी कांग्रेस की. बाबा साहब को 1952 1954 में 2 बार चुनाव हरवा दिया. ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि थी कांग्रेस की. सबके लिए दिल्ली में उनके अंत्येष्टि पे एक अलग अलग जन समाधि स्थान, फलाना स्थान हो सकता था. बाबा साहब को मुंबई से वापस दिल्ली तक नहीं आने दिया गया. बहुत बड़ी श्रद्धांजलि थी. आज जो 5 प्रेरक हम लोग बनाए, पंच परमेश्वर जिसको हम कहते हैं, पंच परमेश्वर बाबा साहब के लिए, वो पिछले 10 साल में ही क्यों हुए? इस देश को 75 साल लग गए. बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने में you took 40 long years. What for? Pandit Nehru gave himself Bharat Ratna while he was living. Indira Gandhi gave herself Bharat Ratna when she was living. Rajiv Gandhi got a Bharat Ratna the day after he died. And it took 40 long years for Baba Saheb to get a Bharat Ratna. श्रद्धांजलि है कांग्रेस पार्टी की. तारीफ दीजिए इनको. नहीं, मुझे और एक बात बतानी है कि अंबेडकर जी को, ये आपको सबको पता नहीं होगा, there were 300 people who were drafting the constitution. In those 300 people, and they were not nominated, elected people, guys, elected people who drafted the constitution. And for your kind information, even my good friend might not have read this in the history, Baba Saheb was elected from the recently Pakistan occupied area. And it was Gandhi ji who decided कि in spite of being वैचारिकता, विभिन्नता हो सकती है मुझ में और बाबा साहब में, but he is the best person to write the constitution and lead the constitution in a particular direction, lead the country in a particular way. Right. और ये विभिन्नता होने के बावजूद उन्हें नॉमिनेट किया गया इंडिया से, प्रेजेंट इंडिया से, and then he was made as the head of the committee. ये देन नहीं है कांग्रेस की. बाबा साहब अंबेडकर को वो श्रद्धांजलि नहीं है. और मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ. आई हैव टू मेंशन दिस. जी. मेरी एक आपत्ति जरूर है. यहाँ पे बहुत सारे यंग भी है एंड माय एज पीपल आर आल्सो देयर. प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस आल्सो. हाथ ऊपर करके. आपके इसमें घर में आपके माताजी पिताजी है? यस. यस. ग्रैंड पेरेंट्स है? यस. जब भी आपके दादी आपकी मम्मी को बोलती है हमारे ज़माने में ऐसा होता था, तू ऐसे करती है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसी सब्जी बनाई जाती है, तुम आपकी मम्मी क्या बोलती है? मम्मी जी आपका ज़माना गया, हमारा है अभी. मम्मी आपको बोलती है अरे बेटा हमारे ज़माने में तो साइकिल भी नहीं मिलती थी हमें स्कूल जाने के लिए, तुम अभी से स्कूटी और 4 व्हीलर भाग रहे हो. आप लोग क्या बोलते हैं मम्मी और पापा को? मम्मी आपका ज़माना गया, या आज का ज़माना है. तो मैं मेरे फ्रेंड को पूछना चाहती हूँ, और आप सब लोग कितने सहमत हैं, हम इनको आज के ज़माने में आपने क्या किया पूछते हैं तो ये हमेशा पीछे क्यों जाते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया वो बताइए 75 साल में. अरे भैया नहीं चाहिए हमें. हमें जो करना था, हमें जब देश ने मौका दिया तब हमने करके दिखाया. अभी देश ने आपको मौका दिया है, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं महिलाओं के लिए, आप बताइए आप युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं, आप बताइए सेफ्टी ऑफ वुमेन क्या कर रहे हैं आप. टेल मी, टॉक मी ऑन टुडेज सेंचुरी. कुछ भी बोलो. 75 साल पहले. अरे भैया आप न्यूरोलॉजिस्ट हो, सॉरी सर, शायद आपने डॉक्टरी जिस कॉलेज से की होगी वो भी शायद कांग्रेस की देन होगी, मुझे पक्के से याद हो. और जिस शाला से आप सीखे होंगे पक्के सा वो शाला भी कांग्रेस वालों ने सोच के बनाई होगी. एंड आई एम प्राउड टू से एज अ गायनेकोलॉजिस्ट बिकॉज मैंने लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज से, म्यूनसिपैलिटी कॉलेज है वो बॉम्बे में, वहाँ से शिक्षा ली है. एंड आई एम प्राउड टू से कि तिलक का भी हमें विचार मंजूर है, गांधी जी का भी विचार मंजूर है, सरदार पटेल का भी विचार मंजूर है, अंबेडकर का भी विचार मंजूर है, पर हमें एक इंसान का विचार मंजूर नहीं है. मेरा देश विभिन्नता से बना है.
मेरे देश को, मैं कर्नाटका से आती हूँ, तो मेरे देश को जब मैं गजरा डालती हूँ तो मुझे बहुत सारे फूलों की जरूरत है. एक फूल से मेरा काम नहीं चलने वाला है. या कोई बच्चा क्रिकेट Thank you. खेलता है अच्छे से, कोई कुछ और खेलता है. तो प्लीज आज आपने क्या किया है वो बताइए. हमारा जमाना जो हमने किया है वो हमने देश को दिखा के छोड़ा है जितने सालों में. तो ये ऐसा हुआ है कि जब से ये डिबेट शुरू हुआ मैं सिर्फ एक सवाल पूछ पाया हूं और डिबेट अपने आप ही चल रही है. बट सिंस वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट बाबा साहेब अम्बेडकर, यहाँ बैठे हुए स्टूडेंट से मैं बताना चाहता हूँ कि देयर इज अ स्टोरी विच सेज दैट व्हेन अम्बेडकर हैज सर्व्ड इन बड़ौदा, बिकॉज उनको जब विदेश भेजा गया था पढ़ाई के लिए तो सर सयाजी राव ने वो फंड किया था. In return of that, as a gratitude, he came back to Baroda state and he served for a while. And when he was leaving Baroda, तब उनके मन में ये ख्याल आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. इसलिए कमाटी गार्डन अगर आपने सुना है, कमाटी बाग में एक संकल्प भूमि नाम की जगह है. ऐसा कहा जाता है कि उस नदी के किनारे, विश्वामित्री के नदी के किनारे, वहां पर बैठकर उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन की रचना करूंगा. सो उसका छोटा सा क्रेडिट बड़ौदा को भी जाता है जहां पर आज हम बैठे हैं. एंड since we are talking about history, so now let's talk about history. हम 1961 में पहुंच गए, 1947 में पहुंच गए. हिस्ट्री जो अभी पढ़ाई जाती है, हाँ, सो अभी हम जो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, should there be government's role in defining what is being taught to students? Yes, no, क्यों? इस बार आपसे शुरू करते हैं मैम. Okay. See, I always believe कि history is always narrated or seen through a historian's eyes. जो वो historian लिख रहा है उसके हिसाब से वो analyze करता है. मेरा analysis अलग होगा, आपका अलग होगा, किसी और का अलग अलग हो सकता है. तो जब हम ये लिखते हैं, सबका इन्वॉल्वमेंट जब जब टाइम पे जो जो हुआ है वो रहना चाहिए. मुझे अभी याद है, हम लोग जब छोटे थे, स्टेट बोर्ड था मेरा, मैं महाराष्ट्र में पढ़ी हूँ, तो स्टेट बोर्ड में हमारा सिविक्स का बुक्स था जिसमें चैप्टर वाज ऑन गांधी जी, तिलक, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर जी, इंडिविजुअल. दैट इज हाउ I have learned by history. Then came a phase where NCERT books we started reading, जहाँ पे ancient, medieval और modern India का history 3 भागों में विभाजित किया गया है. अब अभी का पॉलिसीज में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाने में, कैन यू बिलीव दिस? मौलाना आजाद जी जो हमारे उस टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनका क्लास 11 से चैप्टर ही गायब कर दिया है. You don't want to know what your first education minister gave to the nation? Is this the history we are trying to tell people? मैंने इसलिए ये सब नाम लिए क्योंकि मुझे याद है, मुझे जिन्ना के बारे में भी पता था, मुझे अंबेडकर जी के बारे में भी पता था, और मुझे इन सब में जो भी विभिन्नता की वजह, जो भी वैचारिक मतभेद थे वो भी पता थे, और जो है वो दिखाया गया था. अब इनके हिसाब से गोडसे अगर इनका नेशनल हीरो हो सकते हैं, तो उनके बारे में हमें बताया गया है कि ही हैड किल्ड गांधी जी करके. अभी वो आपका नजरिया है, आप उनको कैसे देखते हो, मेरा नजरिया है कि मैं कैसे देखती हूँ. मेरे को कोई भी अगर गोली मारने वाला हो, कौन से भी विचार भावना से हो, let it be a good intention or bad intention or whatever, whosoever takes law in hand is a person who should be imprisoned and punished according to the law of our nation, that is India. आज मुझे आपसे विभिन्नता है, मैं उठ के just because I didn't like few policies or decisions what you had made, आपको किसने अधिकार दिया किसी की जान लेने का? आज हम इवन वी आर टॉकिंग अबाउट सेविंग एनिमल्स. और अगर वो रिसेंटली एक पिक्चर मैंने देखा था, आई थिंक कौन सा वाला, जिसमें रणवीर सिंह है, मल्हारी मल्हारी सॉन्ग है. आई डोंट रिमेम्बर द, अरे कौन सा, मैं भी भूल गया. हाँ, बाजीराव मस्तानी. उसमें उसका जो कैरेक्टर है
उसमें एक डायलॉग वो बोलता है ना, आई वॉज स्टक बाय दैट डायलॉग। इतिहास के वो पन्ने ही फाड़ दो जिसमें मुझे बुरा दिखाया गया है, नया इतिहास लिखो जिसमें मैं एक अच्छा राजा हूं और मैंने राज किया था और मैंने जनता के लिए काम किया था। आजकल की इतिहास के किताबें उस लाइन पे चल रही है। एंड इज इट फेयर फॉर जनरेशंस टू कम टू नॉट नो अबाउट गांधी जी, टू नॉट नो अबाउट सरदार पटेल, टू नॉट नो अबाउट अंबेडकर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन वन स्पेसिफिक वर्जन ओनली? क्यों है एक ही धारा में गंगा बहनी चाहिए? Is my only argument, and against for all these things when it is going to write about histories. आप 2002 के दंगे कैंसिल कर देते हो, 1971 का इमरजेंसी फिर से आता है, वो हमारे जमाने का, उसको दिखाते हो, 78 में जो दंगे हुए उसको दिखाते हो। I mean, why you have to be selective bit and pieces showing we are the good one and they are the bad ones is the only thing which I feel as a responsible citizen to for coming generations, that it should be shown and narrated. Obviously, it will be a historian's perspective, but उस perspective में विभिन्नता की भी होनी चाहिए, इतना ही मेरा कहना है। Okay, sir, would you want to add something? देखिए, सबसे पहली बात तो हिस्ट्री को मिस्ट्री नहीं बना के रखना चाहिए। हमारे देश में 75 साल से हिस्ट्री को मिस्ट्री बना के रखा गया। अभी इतनी पिक्चर्स की नाम ली गई, बाजीराव मस्तानी की नाम ली गई। बाजीराव मस्तानी क्या हमारे इतिहास के पिक्चर में था? वो तो बहुत सेकुलर थे भाई। उस वक्त गुजरात अलग नहीं हुआ था महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र गुजरात कंबाइन के सबसे बड़े लीडर होते थे वीर शिवाजी महाराज के। बाजीराव, किसको कौन नहीं जानता बाजीराव पेशवा को? और बाजीराव पेशवा ने मस्तानी जो एक मुसलमान की थी, उनसे उन्होंने शादी की, उनको रखा। उससे बड़ा सेकुलर किया, लेकिन उनको भी इतिहास के पन्ने से हटा दिया। शिवाजी महाराज जो क्या हमें जानना हमें जरूरी नहीं था, आपने उनको भी हटा दिया। इंडिया इंडिपेंडेंस हम लोग कहते हैं 1947, लेकिन इंडिया फर्स्ट क्लेम इज इंडिपेंडेंस इन 1945 अंडर सुभाष चंद्र बोस। उनको हमको इतिहास में जानना पढ़ना जरूरी नहीं था एनसीईआरटी में, आपने उनको भी हटा दिया। आपने रखा किसको? बाबा साहब अम्बेडकर को कितना आपने पढ़ा है? पढ़ा कितना है? आपको क्या ऑब्जेक्शन है कि एपीजे अब्दुल कलाम को हटा दिया गया क्लास 11 से, एनसीईआरटी के सिलेबस से? 10 तक तो पढ़ा रहे हैं आपने, तो 10 तक बाकी को किसी को जानने भी नहीं दिया। वीर शिवाजी कौन थे? छत्रपति फूले कौन थी? चंद्रशेखर आजाद कौन थे? भगत सिंह कौन थे? कौन थे ये लोग? आजादी की लड़ाई में क्या इनका योगदान नहीं था? अगर हम इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो हमने अकबर पढ़ा, हमने औरंगजेब पढ़ा अपनी इंडियन हिस्ट्री में, हमें अपने राजाओं को क्यों नहीं पढ़ा? महाराणा प्रताप को हमने क्यों नहीं पढ़ा? लक्ष्मीबाई को क्यों नहीं पढ़ा? एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं कह रहा हूं इतिहास को अपने पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। आज का इतिहास हम क्या कर रहे हैं? नई एजुकेशन पॉलिसी पे हम जाते हैं। छत्रपति शिवाजी नई एजुकेशन, अब इसी बात पे मैं इसी बात पे मैंने कहा भी हिस्ट्री मिस्ट्री है। हम किसी हिस्ट्री अबाउट राणा, let him finish. I will give you time, ma'am. हम लोग इतिहास के हर प्रोस्पेक्टिव को जानने के हकदार हैं कि हमारा इतिहास क्या था। संयुक्त भारत अगर हम कहते हैं, अखंड भारत कहते हैं, तो अखंड भारत कैसे ईरान से लेके यहां तक फैला हुआ था, कैसे कटते गया, कैसे जो आज की तारीख में हम अगर विश्व के हिसाब से बात करें, वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से करें, तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज क्रिश्चियंस विद 2.3 बिलियन, द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज मुस्लिम 1.8 बिलियन, थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज हिंदू 1.3 बिलियन, एंड येट सारा टैक्स हमी पे होता है। तो ये प्रोस्पेक्टिव अगर हम नहीं जानेंगे इतिहास के प्रोस्पेक्टिव में, जो इतिहास नहीं जानता है वो वर्तमान कभी सुधार नहीं सकता, भविष्य अंधकारमय होगा, ये गारंटी है। नहीं, ये बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ। इतिहास नहीं जानता है वो इतिहास बना भी नहीं सकता है। इतिहास वही बनाते हैं जिनमें मादा होता है खड़ा रहने का और बताने का इतिहास गलत हुआ है। जिन्होंने जहाँ पे पॉपुलेशन की बात की, पॉपुलेशन के हिसाब से वही तो हम चाहते हैं कि कास्ट सेंसस हो। भैया पता तो चले कौन कितना है। आप कास्ट सेंसस कर ही नहीं रहे हो। आप कहाँ करवा रहे हो कास्ट सेंसस? क्योंकि असलियत बाहर निकल आएगी, क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि भैया ओबीसी तो हम बोल रहे थे 5% है, वो तो 50% हो गए। यार आदिवासी तो हम बोल रहे थे 2% है, वो तो 20% हो गए। और इसीलिए आज संविधान के दिन पे हम वही चाहते हैं कि कास्ट सेंसस होके उनका अधिकार उनको मिले। तो ये बोलते हैं कि नहीं
हमारे लीडर देश जाति के नाम पे बांटना चाहता है। कौन बांटना चाह रहे हैं भैया? उस टाइम पे जब मुगल आके हमें बांट नहीं पाए, जहाँ पे अंग्रेजों ने राज करके देश पे हमारे वो बांट नहीं पाए, आपने आके जितना बांटा उतना उन लोगों ने नहीं बांटा है मेरे देश को। ये भी आज की अखंडता भारत का डेफिनेशन है। और इसीलिए आजकल इनके ही जो आरएसएस के संगी लोग हैं, जो खुद शादियां नहीं करते बट हमको सलाह देते हैं कि 3-3 4-4 बच्चे निकालो। अरे भैया, पहले अपना घर तो सुधारो, पहले आप शादी तो करके देखो। एक बीवी संभालना कितना मुश्किल होता है, इसीलिए शायद बीवी नहीं है किसी के पास। और ये बात कर रहे हैं 3-3 बच्चे निकालने के लिए, और ये आप बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन हिंदू कम हो गया। आई मीन, वेयर आर वी गोइंग इन 21st century? Let's stick to the topic. What? Let's. And not on education. यार मेरा not mic loud on करो. health. And I'm sorry to say, but I'm sitting with a neurologist and talking on all this issue, except for health and education. I mean, come on education. This is really. Let's come on let's talk. education. Okay, Let's so come on education. so we've Let me educate the Congress nicely. Please. भैया, आप भूल गए। we've divulged from. आपका प्ले स्कूल कांग्रेस के स्कूल में हुआ है, आपका न्यूरोलॉजी भी कांग्रेस के स्कूल से आया है, तो आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे एजुकेट देखिए करने मैम, की। सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हैं। द मेजोरिटी ऑफ दिस ऑडियंस कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड जैसे एजुकेशन की हम बात कर रहे थे, सो ऑब्वियसली अ मेजर पार्ट ऑफ टुडेज एजुकेशन इज द NEP. So now I want to know your perspectives about the NEP. What do you think it stands for, and where do you think it will take us? हम बात कर रहे हैं 2047 की. We are talking of something which comes, say, 25 years later. See, this is very important. NEP मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो हम लोग इंट्रोड्यूस करके लाए थे। इसकी विजन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसकी विजन, इसकी सोच 2014 में ही आ गई थी कि हमें भारत को अगर आगे बढ़ाना है तो एक ऐसी इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए जो हर तरह से डाइवर्स हो, डायनामिक हो, इंटरचेंजेबल हो, इंटर क्रॉस सिलेक्टिविटी हो। ये कैसे होगा? हम कोई चीज़ सोचेंगे लेकिन वो ग्रास रूट पे कैसे जाएगा, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा? द फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2015, जो न सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी बल्कि हमारी इकोनॉमिक्स को भी प्रभावित करती थी, वॉज डिजिटलाइजेशन एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू ऑल ग्राम पंचायत, टू एवरीवन थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ये 2015 में ये काम शुरू हुआ था, 2020 को ध्यान में रखते हुए। इसका फर्स्ट लोको पायलट टेस्ट हम लोगों ने किया 2016 में, जब हम लोगों ने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया कि अब हम भीम ऐप, UPI, गूगल पे ये सब सिस्टम करेंगे क्योंकि हमारी मोबाइल कनेक्टिविटी इंप्रूव हो गई है। तो सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट ने बड़ा पार्लियामेंट में मजाक उड़ाया कि गाँव के लोग इंटरनेट कैसे यूज़ करेंगे, कोई चलेगा ही नहीं, इंटरनेट यूज़ करने आता नहीं, ये चलेगा नहीं। एनीवे, हार्वर्ड कैम्ब्रिज फेल हो गया, चाय वाला पास कर गया। एवरीवेयर द गूगल इज गोइंग ऑन एवरीथिंग। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि जब ये नेट कनेक्टिविटी पहुंच गई हर जगह हमारी, तब दिमाग में आया कि अब स्कूल को हाईटेक करना है। स्कूल को हाईटेक करने के लिए क्या जरूरत है? पंचायत को हाईटेक करें, पंचायत में जल्दी से पहले इंटरनेट लगाएं, सिस्टम्स लगाएं, मल्टी सिस्टम्स लगाएं। ये 2019 तक हमारा काम पूरा हो गया। देन इट वॉज टाइम टू गेट इन टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये हम इंट्रोड्यूस करके लाए। नाउ दिस वाज नॉट अ पॉलिसी ऑफ अ नी जर्क रिएक्शन कि आज हम पॉलिसी लाए, कल हम इंप्लीमेंट कर देंगे। नो, दिस पॉलिसी इज गोइंग टू टेक इट शेप इन द नेक्स्ट 10 years। और इसमें सिग्निफिकेंट रेवोल्यूशन आया है। आप लोग तो सब कोई अब 12th पास कर चुके होंगे यहाँ पे। हम लोग क्लास, हमारे पास सिस्टम था 10+2, राइट? 10th करते थे, 12th आ जाता था, राइट। और 9th आते आते पेरेंट्स का, पीयर का, हर एक के प्रेशर, बोर्ड आ गया, 10th आ गया, बोर्ड आ गया, 12th बोर्ड आ गया, उसके बाद IT देना है, मेडिकल देना है, क्या करना है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, प्रेशर पढ़ो। एक एवरेज स्टूडेंट, एक तेज स्टूडेंट, एक लो ग्रेड स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स के लिए वही प्रॉब्लम, वही सब्जेक्ट्स, वही चीज़। हमने 2023 में एक पॉलिसी लाई। द पॉलिसी वॉज 5+3+3+4, 10+2 खत्म। ये पॉलिसी हमने इंप्लीमेंट कर दी 2024 से। NEP, what you call NEP 2024। इसका फर्क क्या पड़ा? लास्ट ईयर हम लोगों ने नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट किया। इट वॉज कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेजेस अक्रॉस 557 सिटीज इन 14 इंटरनेशनल सेंटर्स, 13 इंडियन लैंग्वेजेस में। ये क्यों पॉसिबल हुआ? ये डिजिटलाइजेशन के कारण हम रीजनल लैंग्वेज में, कोई गुजराती में पढ़ना चाहता है, कोई मराठी में पढ़ना चाहता है, कोई तमिल में पढ़ना चाहता है, उस रीजनल लैंग्वेज में हम पढ़ाई आज के डेट में करवा रहे हैं और बच्चे उसी रीजनल एग्जाम में पढ़ाई में एग्जाम दे रहे हैं और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं।
आप लोग को आश्चर्य हो जाएगा कि इस 2024 में आज की तारीख में दीक्षा प्लेटफॉर्म है, आप लोग जाके देखिएगा कभी, 53 करोड़ से ज़्यादा सेशन हम लोग ले चुके हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, 650 से ज़्यादा टेक्स्ट बुक, 650 टेक्स्ट बुक्स, इमेजिन, इन 77 लैंग्वेजेस। इस देश में लैंग्वेज बहुत है, 650 टेक्स्ट बुक्स इन 77 लैंग्वेजेस दीक्षा प्लेटफॉर्म पे इन्वॉल्व है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स, और ये एक आदमी का काम नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है। Like see, the Parul University is a private organization, right? Right. Now, if you want to get into 2024 model, how you can do that? You cannot do that without improving your digital platform. आज के डेट में अगर पारुल यूनिवर्सिटी से चाहे कि कोई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यहाँ पे क्लास लेगा और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर क्लास लेगा से इन सब्जेक्ट ऑफ एनाटमी, एंड यू हैव अ वर्चुअल लैब एंड वर्चुअल प्लेटफॉर्म, एवरीथिंग अवेलेबल इन पारुल यूनिवर्सिटी, वेल यू कैन जस्ट अवेल व्हाट यू आर अवेलिंग इन इंग्लैंड और यूएस। कॉन्सेप्ट ये है, आज की तारीख में हमारे पास 220 प्लस लोकेशन 2024 में हो गया है, जो कि हम वर्चुअल लैब से एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि वर्चुअल लैब से स्टूडेंट्स आएंगे और अपने स्टूडेंट इंटरेक्ट करेंगे। मल्टीपल सबसे बड़ा ऐसा कोर है, फिनिशिंग ऑफ द स्ट्रीम बायसेस जो थी हमारी 10th के बाद, Right. या तो हम कॉमर्स लेंगे या हम साइंस लेंगे या हम आर्ट्स लेंगे, उसके बाद हमारी लाइन ये 3 में खत्म हो जाती थी। ये स्ट्रीम लाइनिंग बायसनेस हमने खत्म कर दी अब इस नए पैटर्न में। नाउ अ स्टूडेंट ऑफ अ साइंस कैन ऑल्सो टेक हिस्ट्री, A student of economics can also go for biology, जो कि options हमारे पास US में हैं available आज के डेट में। तो नई education policies has been taken after studying 172 countries education pattern, both developed, underdeveloped, and knowing the situation in our country where we are so-called literate, our literacy rate is 82%, लेकिन इस 82% में वो लोग भी शामिल हैं जिनको सिर्फ साइन करना आता है। क्यों? Right. तमिलनाडु के बच्चे को उठाइए आप, उसको ना हिंदी आती है प्रॉपर ना अंग्रेजी आती है, वो कैसे पढ़ेगा? अगर उसको आप पहले अंग्रेजी पढ़ाने जाएंगे तो उसका 10 साल तो उसी में निकल जाएगा। तो रूट कॉज क्या है? रूट कॉज हमारे पास जो अवेलेबल सिचुएशन है हम उसी में बेस्ट कैसे डिलीवर कर सकते हैं, इसी को कहते हैं विजनरी। तो चाय वाला विजनरी निकल गया, फिर से कैम्ब्रिज वाला पीछे चला गया, क्या कर सकते हैं हम लोग? Okay. So I completely agree that upgradation is a part of our yawned lives. that so loudly. Even I was listening to my friend so enthusiastically, and यार ये नरेशन कितना अच्छे से कर देते हैं, बोलते तो बहुत प्यारा और अच्छा है कि हमें तो यूएस ही दिखा दिया गुजरात में। अब मुझे बताइए, मेरा भारत 70% एग्रेरियन है, रूरल है कि यूएस लंदन में खेलने वाला है और जाने वाला है? One sec, sir. Now I allowed you to talk. मैं Give me education only 2 policy पे बात minutes. कर रहा था। Only 2 minutes. 2047 की बात कर रहे हैं आप, मुझे पता है विजन की बात कर रहे हैं, लेकिन लोकल अवेलेबिलिटी और लैंग्वेज पे भी इन्होंने बहुत बोला। ये बोले हमारे देश का इतने सारे लैंग्वेजेस है, फिर हिंदी इम्पोजिशन क्यों कर रहे हैं ये लोग? आर दे नॉट डूइंग कि सबने हिंदी में बात करनी चाहिए? क्यों कर रहे हैं भैया हिंदी imposition? In he rightly said, Tamil Nadu is not a state who understands and talks Hindi. एंड ये अभी रीजनलिटी की इतनी बात कर रही है, मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ, मेरी शादी को 25 साल हुए हैं, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आई हूँ, लेकिन मेरा पति कोल्हापुर जैसे गांव में मराठी मीडियम में, उस टाइम पे 1970 का उनका जन्म है, उस टाइम से मराठी मीडियम में पढ़ के आके आज वो IPS ऑफिसर है। ये आपकी देन नहीं है। रीजनलिटी, दिस इज व्हाट इज बीन गोइंग ऑन। पर आप कैसे दिखा रहे हो ना कि नया रैपर बना दिया, अरे क्या बर्थडे है आज, इसका जाना है, चलो वो किसने दिया था, परसों बर्थडे गए थे, वो वाला ले लो और उसको रैप करके इनको दे दो। No, but what is your take on NEP? My thing on national education policy is इसमें डाइवर्सिटी है कहाँ? और ये आज की बात करें, ये तो सिंस कितने कोठारी कमीशन जब पहला बैठा था उसके बाद कितने सारे ये रिविजन्स हो चुके हैं, राजीव गांधी जी ने किए हैं, एंड लेटेस्ट अभी 2020 में माय फ्रेंड नोज रिवाइज हुआ है, उसमें भी बस एक लाइन के लोग, RSS समविचार लोग, वेयर आर द डाइवर्सिटी? अगेन आई एम टॉकिंग, वेयर आर द NGOs who have multilingual, multifaceted view of our education are there? What about the Anganwadis and schools we are talking about? You are talking about Parul University. I am happy that many of the students here have this privilege and this thing to study in a university like this thing. But the place I represented as an MLA, वहाँ पे बच्चियाँ मेरी 6 standard के आगे जाती नहीं है पढ़ने।
Why? Because the higher secondary जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का स्कूल है वो उसके गांव से दूर है and 60-70% in forest से चल के जाने के लिए उसका अगला एजुकेशन बंद हो जाता है. And very nice, it look very nice, digital India. In fact, today morning only I was telling to my person, यार ये digital India बात क्या है? लगती तो बड़ी फैंसी है. अब मैं तो 5 साल एमएलए भी रह के काम कर चुकी हूँ और जहाँ पे मैं काम करती हूँ तो वहाँ पे तो ग्राम पंचायती में नेटवर्क ही नहीं रहता है. 10-10 दिन नेटवर्क सर्वर ही डाउन है. एक राशन कार्ड निकालने के लिए मेरे खेत में काम करने वाला आदमी अपने खेत में अगर वो नहीं काम किया तो उसका उस दिन का 100, 200 या 300 रुपए जो चला जाता है एक राशन कार्ड निकालने के लिए, जस्ट टू प्रूव दैट आई बिलोंग टू दिस विलेज. दिस इज व्हाट डिजिटलाइजेशन हैज गिवन टू अस इन रूरल इंडिया. I agree. It has given many more things in the cities. I'm not disagreeing to that totally. But my India is 70% in the villages, is an agrarian community. Tell me what your national education policy is doing for rural education. भैया इनका तो ऐसा है ना कि वो आपको अगर पता नहीं हो तो इसका तो लीगल स्टेटस भी नहीं है. ये लीगल स्टेटस नहीं, कोई बजट ये नहीं, और ये लोग बहुत बात करते हैं एजुकेशन पे. You know 6% of the GDP should be allotted for education and past so many years. It is stuck at 3%. For that matter, actual figures 2.8% stagnant है पिछले 10 साल से. I am talking this on education. I'm not talking GDP इतना बढ़ गया उतना बढ़ गया, नहीं चाहिए भैया. जितना है हमें उसमें से आप एजुकेशन के लिए दो. You are stuck at 2.8% and you say you are doing all these things for my generations to come in when it comes to education. How do I take this? And how are we going to take this? I'm talking and I'm presenting this question to all the people present here because since you have that privilege, you are the most blessed kids among the other kids who have got an opportunity to study in a place like Parul University. True. Please take it forward to other generations, coming generations, to less privileged, downtrodden kids also, कि उनको at least यार 10वीं तक 12वीं तक तो at least शिक्षा मिले. Let him do at least IIT courses and ITI courses and get some job, decent job. I think sir wanted to add. Which national education देखिए policy सबसे पहली should बात have? सबसे पहली बात कि मैम एक लेजिस्लेचर एमएलए रही हुई हैं, सो आई एक्सपेक्ट कि सर्टेन चीज़ एक लेजिस्लेचर होता है या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको पता होना चाहिए. 2023 NFEP में जब असर आया था ASAR जो कि पार्लियामेंट्री की कमेटी है, उसमें क्लियर कट रिकमेंडेशन था कि नेक्स्ट 3 years our GDP towards education and Ministry of HRD has been changed to Ministry of Education और इसका GDP में इसका बजट 6% होगा और 2024 का बजट अभी 25 का आने वाला है. इसका फर्स्ट इम्पैक्ट आप असर का उसी में देखिएगा. नंबर 1. Happy. नंबर टू शी सेड कि रीजनल लैंग्वेज क्या रीजनल क्या. मैडम तब से तो यही समझा रहा हूँ कि रीजनल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना. 77 लैंग्वेजेस में एग्जाम ले रहे हैं. दिस इज व्हाट. एग्जाम कैसे लेंगे अगर पढ़ाएंगे नहीं? एग्जाम कैसे लेंगे अगर कंटेंट उस लैंग्वेज में डिलीवर नहीं करेंगे? दिस इज व्हाट इज द अचीवमेंट इन द लास्ट 3 years. वी आर डूइंग इट. अब डूइंग इट नाउ यूपीएससी जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मराठी में लिखी है इन 1995. आई एम टॉकिंग मराठी में मराठी इज अ रीजनल सब्जेक्ट. मराठी इज अ रीजनल सब्जेक्ट. आपको एक सब्जेक्ट रीजनल लेना पड़ता है. यहाँ हम बात करें पूरे. मैं पूरी एग्जाम बोल रही हूँ. I am here talking. I am talking of full exams. Very great responsibility when I'm talking. Now, Don't mislead. no, I'm not misleading. मैं अपने से You सीखती cannot हूँ. आप mislead. दूसरा मैं अपने से सीखती हूँ. आप why बोलते हो are कि we shouting in between? ऐसे करो. मैं अपने Why से are we सीखती हूँ, shouting? आप अपने से Why are we सीखो. shouting in between? We cannot mislead them. They're all young graduate going to be graduate. They can check us what we are speaking in Google and then they can just put a remark on my Facebook or my Twitter कि sir what bullshit you were speaking. That's very true. We cannot mislead you. Third thing. आप जब लेजिस्लेचर थी, आप अपने घर में और अपने लोगों के लिए अगर राशन कार्ड नहीं बनवा सकती थी और कांग्रेस गवर्नमेंट में अगर आप लेजिस्लेचर थी तो ये हमारा फेलियर नहीं है मैडम. सॉरी. मैं जब लेजिस्लेटर थी अब
नहीं नहीं, मैं जब लेजिस्लेटर थी तो मेरे फ्रेंड को बताना चाहती हूँ कि उस टाइम पे मुंबई जी की 40% बीजेपी की सरकार थी और जिनको 80 पे लाके कर्नाटका के लोगों ने रखा, दैट वाज मुंबई 40% सरकार. So Arnab Goswami was a guest yesterday. And secondly, sir, why I say this? Because my friend See, the belongs to problem Bihar. is you don't have logic, then you start shouting. I No, cannot no, help कल it. अर्नब गोस्वामी यहाँ पर आए थे. मैं अर्नब गोस्वामी नहीं बनना चाहता हूँ. Being loud is not shouting. Let's talk one after the other. Affirmative is not shouting. That is what you people do. You people directly pass on. And I would like to remind to my dear friend, We in this want you to aspect, speak more and He more. belongs to Bihar. He belongs to Bihar. Bihar was one amongst the Bimaru states which we had. एंड ये लोग बोल रहे थे कि हम दूसरों को क्यों परोसे, हम हिंदूज क्यों ऐसे करें, दूसरों की जाति को ऐसा वैसा पैसा देके. I take a strong objection that you are talking, you are calling Bihar a Bimaru state. Bimaru let I us take hear a back. strong objection in that. Since I just take a strong objection. He's calling Bihar a Bimaru state. Bihar is not a Bimaru state anymore. Since 1980, It was Bimaru till when it was ruled by them. declared as It's no more Bimaru Bihar. state, we were the one who It was a defended jungle them. Raj when they were ruling. We were the along one with who Lalu fed Yadav them, and all. and I proudly And say they have this audacity to call it as a Bimaru state. Because Karnataka is one of the highest payers in GDP to the center. कर्नाटका को and they नींबू की don't तरह pay निचोड़ us दिया, back. सैलरी तक नहीं दे पा रही They है. don't pay us back. हरियाणा हिमाचल में भी यही हाल है. Okay. हिमाचल में भी यही हाल है, होटलों को गिरवी रखना पड़ रहा वो है. भी आके देख सर, लीजिए मैम, थोड़ा. मुझे 2 Sure. मिनट दीजिए. Next Give me time 2 minutes. concert No, you Karnataka cannot में call रखिए, please. call state a Bimaru Okay. state. It's Sir, against just a moment. it's against the self-respect of Biharis. I take a strong objection to that. She Right. cannot call Bihar a Bimaru state. Okay. It was It Bimaru. was. It is not Bimaru anymore. This is totally wrong. She should apologize to all the I Biharis. will not because it 14 was crores Biharis pride she has hurt. 19, The Congress has 19. hurt 14 crores Biharis pride. 1980. देखा? And when mind जब सच्चाई आती है तो pride आ the जाता है Biharis इनका. are everywhere. जब सच्चाई आती है तो प्राइड नहीं, आ जाता है. एक मिनट, मैंने मैंने quote किया कर्नाटका and बोला. I stick to my quotation. 1980 when certain Who was states ruling in were 1980? declared as Bimaru. Who was ruling in It 1980? was- आ गए फिर से. Who was अरे ruling in आपने क्या 1980? किया? Okay, let's. डिक्लेयर करके बिहार, मध्य बिहार प्रदेश, को बिहार बोल के deflate कर राजस्थान, रही है. She's उत्तर running away. प्रदेश, all these states were supported by other states for the upliftment of the people there, and I'm proud of other states that they thought so. And she is in not proud of uplifting. Bihar. Congress is So not he is proud of only Bihar, not proud of Bihar. Bihar. Give her a But big I'm hand for proud that. of my India. I She is am not proud of my Bihar and India. Biharis. Very nice. Okay. Nice way to go, Thank sir. you, sir. I Thank you, came ma'am. to know Proud today of only my India. that Give me Congress 2 is not minutes. proud of Bihar and Biharis. सर 2 मिनट. मैम 2 मिनट. मैं अक्सर ये सोचता था कि टेलीविजन न्यूज एंकर्स को इतनी सैलरी क्यों मिलती है. अब समझ में आ गया. No, I really. Anjana Om Kashyap was supposed to be here, but I am the only one who was affordable. So I am here. No, jokes apart. So I understand. मैं दोनों perspectives, दोनों ideologies को मैं समझ भी पा रहा हूँ. पर जैसा हम शुरुआत में बात भी कर रहे थे कि the basic idea of today's conversation / debate is to reach out to young minds. So let me very quickly change the topic before we take some questions from the audience as well. And now what I want to ask both of you is about freedom of speech. बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होनी ही चाहिए. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आजकल के समय में नहीं एग्जिस्ट करती. कुछ लोग कहते हैं कि करती है. What are your point of view, sir? We'll begin with you this time. मैं बिगिन करती हूँ, मुझे आती करने के लिए अच्छा होता है ना. अगर 10 years से कि हम इसमें आर्ग्यू नहीं करते हैं. लेट्स सर. नहीं, Okay. All I right, gave her ma'am. the Chalo. privilege. See, who is he to give me the privilege? ये भी तो freedom of speech Oh है ना. my God! Don't I have my own rights? Here is the freedom of speech. He चलिए, topic पे himself आते is हैं. proving his thing. I'm sticking to the topic. Who is Yes. he to give me a privilege? I am a very well citizen of this country, and I have my own privileges, my own rights as a citizen as well as a woman of this country. Don't I? Thank you. So to come to freedom of speech, really आजकल ना फ्रीडम के नाम पे सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब विदाउट मच थिंकिंग बिहाइंड दैट बात करने में
बस मेरा ये मानना है, सामने वाला क्या सोचता है मुझे नहीं पता, मेरा ये मानना है बड़े उसकी वजह से उसका सेल्फ रिस्पेक्ट धज्जियाँ उड़ाए हम, उसका अबेटमेंट टू लाइफ भी धज्जियाँ उड़ाए हम, उसकी मानसिकता को टोटली मेंटली डीमोरल कर दे हम. And this is not only in speeches in platforms like this or during election rallies or in other spaces also of debates, but it is maximum happening since we are talking about digital India and all this thing. It is maximum happening on Facebook, WhatsApp, and Twitter, Instagram, Reels, TikTok, and God knows what not. And if a girl or a woman like me who is very assertive about her views and ideas, and I get privileges from my colleagues to put my viewpoints forth view, I will be totally and immediately targeted on these platforms, as he said, directly to my sexual content. And it is happening with not one or two, but anyone. And it is not only to women, even to men also. So, पर्दे के पीछे रह के जब कोई इसको टारगेट करता है इस एंगल से, तो उसके लिए गवर्नमेंट शुड मेक सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. सी, जैसे आर्टिकल 19 हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर अस. Right. There are certain norms where the government can curtail also to do all these things. अभी ये कर्टेल करने के लिए when people file cases, डिफेमेशन, दिस दैट, ये वो, तो इसके लिए और एक नया ये चालू हुआ. सुप्रीम कोर्ट नाउ जुडिशरी सेज कि नो, यू कांट इन एवरी एस्पेक्ट, देयर इज अ सेक्शन वेयर यू कांट curtail the freedom of speech. But my only question to the judiciary through this panel also and through this young crowd also and to the various governments run by either BJP or Congress or any other party is that कि freedom of speech के नाम पे responsibility आप किस पे डालना चाह रहे हो? Isn't it your responsibility also as a government authority to curtail all these things? So what do you that think? Life to abatement. My question is, it should not go to that extreme where a person thinks, curtails himself from the society to the point where he even commits suicide. Do you think freedom of speech exists? It does, but अगर आप ज्यादा बात करते हो तो आप एंटी नेशनल बन जाते हो बहुत जल्दी कि ये देशद्रोही है क्योंकि ये संविधान के बारे में बात कर रही है, क्योंकि ये पिछड़ों के बारे में बात कर रही है, क्योंकि ये अपलिफ्ट में बारे में बात कर रही है. अरे भैया, मैं खुद छत्रपति शिवाजी क्लैन से बिलोंग करती हूँ. आई एम अ निम्बाड़कर, वो मेरे वंशज हैं, उनको हम कैसे भूल सकते हैं? पर नहीं, आप देशद्रोही हो जाते हो. दिस इज व्हाट द करंट सिनेरियो इज गोइंग ऑन. Okay. Sir, would you want to add some? I just want to know your point of view कि freedom of speech exist करती है कि नहीं करती आपके हिसाब से अभी के समय में? फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती तो हमारा देश आजाद नहीं होता. सही बात. इस फ्रीडम ऑफ स्पीच के कारण ही हम आप यहाँ बैठे हुए हैं. जिसको जो मन आता है बोलता है, बोलते ही रहता है, हम लोग सुनते रहते हैं. फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे उसको इग्नोर भी करते So हैं. thanks to Congress government. अब फिर बीच में नहीं, प्लीज, Thanks to Congress government. आई डिडंट इंटरप्ट हर. प्लीज डोंट इंटरप्ट मी. मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का पक्षधर हूँ, 100% पक्षधर हूँ कि लोग को फ्रीडम ऑफ स्पीच जो उनको मनाए बोलना चाहिए, लेकिन एक सीमा है. एक सीमा के ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती है. इस पारुल यूनिवर्सिटी के कैंपस में अगर ये होगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये नहीं होना चाहिए. ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है. और उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट देने के लिए अगर लेफ्ट के नेता राहुल गांधी जैसे नेता के खड़े हो जाए तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है. दिस अमाउंट्स टू सेडिशन. ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है. ये फ्रीडम स्पीच नहीं है कि अगर एक मॉब खड़ा हो जाए, केरला में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, और हमास के समर्थन में रैली निकाले और राहुल गांधी बैठ के लंदन में बोले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इज वेरी सेकुलर. नो, दिस इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच. आई डोंट एक्सेप्ट इट. फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? आप अपनी बात बोलिए. आपको एस्टैब्लिशमेंट से प्रॉब्लम है, आपको नरेंद्र मोदी से प्रॉब्लम है, क्रिटिसाइज करिए उनको, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए. कौन मना करता है आपको? 2017 का गुजरात इलेक्शन लोग भूल गए क्या? कितने मुश्किल से जीते थे हम लोग. लोगों को गुस्सा था, लोगों ने अपनी स्पीच निकाली. हिंदुस्तान की एक एबिलिटी है, जो बोलता नहीं है ना वो भी वोट दबा के आपकी औकात दिखा देता है आपको. नहीं.
फ्रीडम ऑफ स्पीच का यह मतलब नहीं होता है कि अगर किसी के धार्मिक भावना को ठेस लगी तो एक धार्मिक समूह इकट्ठा होकर कहेगा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती है। उसी तरह हिंदुओं के लिए भी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है कि हम मंदिर तोड़ देंगे, हम मस्जिद तोड़ देंगे, हम मस्जिद तोड़ देंगे। नो, दैट इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच आप उतना ही रखिए जितना आप दूसरे को आहत नहीं कर रहे हैं और अपनी बातें आप बोल पाइए। किसी दूसरे को हर्ट करने का राइट आपको नहीं मिला है और अपने आप को भी हर्ट करवाने की जीवन भर की कसम आपने नहीं खाई है कि कोई आओ मेरे गाल पे थप्पड़ मारते रहो, हम गांधी बने रहे। नो, ये नहीं होगा। दिस इज नो, ये नहीं होगा। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आपको अपनी बात रखने का पूरा हक है और मिलना चाहिए हक। फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत सारी चीज होती है। इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। राइट, एब्सोल्युटली। इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। लेकिन आप जो किस कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को, दैट इज टू बी टेकन वेरी सीरियसली कि इन व्हाट कंटेक्स्ट यू वांट दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच। I totally agree, sir. on Yeah. this. Absolutely. At least there is one point that all of us agree. तो ये बहुत बढ़िया हो गया। Very quickly, I'm But I taking don't some. agree with him कि elections आपकी औकात दिखाता है। वोट इलेक्शंस कैसे जीते जाते हैं वो तो Election भी नहीं है। कालांतर वो से एक आ अलग रहे topic हैं। है, उस पर हम- वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन वोट औकात नहीं दिखाता। इलेक्शंस हारे जीते जा सकते हैं कैसे भी, जी। बट आपका अस्तित्व, आप 40 साल से आपका इलेक्शन जीतते ideology- आई, ऐसे ही जीती क्या? आपका आइडियोलॉजी क्या है वो अजीब short हालत है। shorts बताता है कि क्या है। Yeah. हमारा ये है ना, ऐसे क्या कर रहे हैं आप फैक्ट भूल गए। This- अरे अयोध्या फैजाबाद वाला, सीट है। अयोध्या वाला। फैजाबाद सीट है मैडम, Sir. पार्लियामेंट्री फैजाबाद। मैम, दिस कॉन्वर्जेशन कैन गो ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और ये टू एंड फ्रो डिबेट्स होती रहेंगी और एंड में तो मुझे लग रहा था कि कुछ ज्यादा ही हीटेड हो गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, बिफोर आई एंड द सेशन मैं 2-3 सवाल आप दोनों से पूछता हूँ। 2-3 नहीं, आपको एक ही वर्ड में आंसर देना है। आपको आंसर एक ही वर्ड में देना है, ओके, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशंस, ओके, एंड यू ऑल कैन आंसर साइमल्टेनियसली और वन आफ्टर द अदर। योर फेवरेट, only one word, huh? ओनली वन वर्ड, फेवरेट फॉरेन पॉलिटिशियन। Let's stick to that. फेवरेट फॉरेन पॉलिटिशियन। हाँ, भारत के नहीं, बाहर के फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है आपके? रीजन मत दीजिए, सिर्फ नाम दीजिए। यार किसको चुनूं? अरे एक वर्ड में जवाब देना था। वही किसको चुनूं? I don't Sir. have anyone favorite. डोनाल्ड ट्रम्प। ओके, what I can say Barack Obama then. okay, what comes to your mind, just in one word, what comes to your mind when I say भारत जोड़ो यात्रा? Rahul Gandhi. Okay, sir, मुस्लिम तुष्टीकरण। what comes to your mind, what comes to your mind when I say Ambani Adani? Modani. Sir, इंडस्ट्रियल फ्यूचर। what comes to your mind when I say Gandhi ji? सर्वोदया सत्य अहिंसा। Sir, दिस कंट्री, क्या ये देश समझ ही में नहीं आता है लोग को। प्रॉब्लम नहीं, सुना ही नहीं दे रहा था। था ना, उसकी तरफ ध्यान गया कि इतना गांधी जी के नाम पे उसने जोर जोर से हाथ उठाया था। लाइक क्या What comes to your mind when I say favorite actor or actress? किसका नाम आता है? एक्ट्रेस इज आलिया भट्ट Okay, एंड एक्टर इज सलमान भाई। okay. अमिताभ बच्चन एंड ऑल एक्ट्रेस। आज आप घर नहीं जा पाओगे। ऑल एक्ट्रेस आई डोंट वांट टू नेम वन। The last movie that you saw? Okay, yesterday only before coming here on Netflix, I saw Spellbound, which is a nice animation. movie. Animation. Yeah, you all it's a should nice see movie. it. बहुत It अच्छी movie. really enlightens you a lot. Yeah. Spellbound. Sir, The last movie I saw was Kashmir Files, and the next movie I'm going to see is Godra. last question. साबरमती रिपोर्ट। ये साबरमती रिपोर्ट। साबरमती रिपोर्ट। अच्छा, आपने नहीं देखी? गोधरा क्यों नहीं सुनना चाह रही है? साबरमती क्यों नहीं, सुन? साबरमती रिपोर्ट आपने नहीं देखी? आखिरी सवाल, आखिरी सवाल। चाय या कॉफी? चाय, एनी टाइम। चाय वाले की चाय या रेस्टोरेंट वाले? चाय वाले की। आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, तो चाय वाले की, ठेले वाले की चाय। ओह, कपरी की चाय। बट ऑब्वियसली जो अभी गैस महंगा हुआ है उससे बनाई बस, बस, वही हुई, इतने ना कि उसमें नहीं गटर जाना की है। पेटेंट वाली। सर, चाय या कॉफी? Due respect to ma'am, Kurk ki coffee. All right, thank you to both our guests.